students, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to complete your chapter number 12 from Social Science textbook, that is Indian democracy, and last five topics are media of public opinion in democracy, types of democracy, election system in democracy, secret ballot in democracy, and democracy and political parties. Okay, so let us start with media of public opinion in democracy. There are two types of media. One is print media and another is electronic media. In print media, there are again several numbers. You can see newspapers, radios, and then your novels, articles, your internet. ये सब जो लिखा हुआ चीज होती है उसको हम लोग प्रिंट मीडिया बोलते हैं, और जो दिखती है हम लोगों को, ठीक है, न्यूज चैनल्स, तो वो सारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाती है. एंड मोर ओवर, एक हमेशा चीज याद रखना, प्रिंट मीडिया से ज्यादा बेटर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इलिटरेट पीपल को भी एटलीस्ट देख के समझ आ सकता है, पढ़ के नहीं तो देख के तो डेफिनेटली समझ में आ सकता है. सो लेट अस बिगिन विथ मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी. Media of public opinion in democracy. To cultivate the human psyche and to create a strong public opinion, the various information and broadcasting agencies are very useful. In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. See, if you can see over here, news channel, radio, television, ये theater है, ठीक है, and your newspaper, okay? These mediums contributing to build strong and effective public opinion are print media and electronic media. Print media. In today's world, newspapers, periodicals, and journals hold utmost importance in facilitating people to know more about incidences, events, and situations taking place nationally as well as internationally. So, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि नेशन में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है? तो व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स और जर्नल्स, तब आपको पता चलता है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है. सो प्रिंट मीडिया ऐसी है जो लिखी हुई चीज होती है, और वो अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको नॉलेज मिलती है. इवन इंटरनेट का जो मीडियम है, अगर आप लोग रीड करते हो तो उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं. अगर आप लोग उसी के ऊपर कुछ न्यूज वगैरह देखते हो तो वो हो जाता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके बच्चों? Print media helps people to evaluate their opinions either in favor or against the information presented by them. The same information presented by the print media can create multiple viewpoints in the people. अब देखो, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीज लिखी हुई होती है, लेकिन वहां से पीपल के माइंड में क्या छपता है वो पीपल ही क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर्स अच्छा लिखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स बुरा लिखते हैं, या अच्छा भी लिखते हैं, बुरा भी लिखते हैं, लेकिन उसका माइंड का इफेक्ट पीपल के हिसाब से किसके ऊपर कैसा रहेगा, उस हिसाब से पब्लिक ओपिनियन गैदर किया जा सकता है. ओके? People give different individual responses to the same information and develop individually diverse opinion. It is essential that the opinions created are true, firm, and unbiased. और दूसरी चीज, अब हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हर एक लोग अलग अलग अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ, वगैरह वगैरह. एंड देन ये जो पब्लिक ओपिनियन बनता है वो इस तरह से बनना चाहिए कि वो हमेशा के लिए ट्रूथ हो, फर्म हो, एंड लास्टली किसी के तरफ बायसनेस नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अनबायस्ड. If the print media presents biased or false details, then it is possible to create a false public opinion. It is absolutely essential to have freedom of press so that a false public opinion is not created by presenting only achievements of the government
and thereby hiding the faults, failures, or shortcomings of the government. सो प्रिंट मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए सो दैट दे कैन राइट ऑन देयर वेरी ओन कि ये गवर्नमेंट की गलती है, ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये सब फॉल्स इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट मीडिया को अगर आप लोग पैसे खिलाते हो और सिर्फ वो आपकी अच्छी अच्छी बातें लिखे, वैसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ट्रूथ के पीछे जाना है एंड देन क्रिएट योर ओन ओपिनियन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Ours is a diverse nation in terms of language, culture, and regional varieties. The regional newspapers are much sought after in corresponding regions. और हर एक रीजन्स के लिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं। इवन इन गुजरात अगर हम लोग बात करें, गुजरात समाचार, गुजरात गार्डियन, गुजरात मित्र, दिव्य भास्कर, संदेश, ऐसे अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं। हर एक में कुछ ना कुछ अलग अलग लिखा होता है। दैट माइट बी एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, दैट माइट नॉट बी एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट, दैट विल शो द गुड पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट या द फेलियर्स ऑफ गवर्नमेंट। Regional newspapers then have an immense contribution in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in countries and regions having less literacy rates. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रिंट मीडिया फेलियर कहाँ पे होता है, जबकि आप लोगों के पास इलिटरेसी है, मतलब कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना नहीं आता हो तो वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है, सो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वहां पे प्रिंट मीडिया क्या है, इट्स अ फेलियर। तो वहां पे क्या काम आता है, वहां पे काम आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कुछ जगह पे टेलीविजन्स भी नहीं होते हैं, तो वो लोग रेडियो पे बातें सुनते हैं। ओके, In spite of this, various organizations, industrial groups, and political parties publish their own dailies or periodicals owing to the influence exerted by printed material. और फिर कुछ लोग क्या करते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने नए नए ब्रोशर्स लगाते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं कि हम लोगों ने ये इतने 5 सालों में इतना काम करके एक पीरियोडिक या एक जर्नल या एक बुक जैसा छपवाते हैं और फिर लोगों में बांटा जाता है सो दैट प्रिंट मीडिया से पब्लिक ओपिनियन जो है वो हम लोग गैदर कर सके। ओके, The government also publishes various periodicals and issues providing important information. Electronic media. चलो नेक्स्ट, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे मैंने बताया, न्यूज चैनल, रेडियोस वगैरह जो है, जो हम लोगों को दिखता है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इम्पैक्ट जो है पब्लिक ओपिनियन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग आज तक वगैरह देखते होंगे तो वहां पे वो सो सॉरी वाला कार्टून वाला जो रहता है, उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, कौन सी गवर्नमेंट फेल हुई है, कौन से राजनेता ने कौन सा गफला किया है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोगों को ऐसे आंखों के सामने दिखाई देता है। और जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है वो हमारे माइंड के साथ एकदम सेट हो जाता है। अगर वो सेट हो जाता है दैट मीन्स व्हाट, कि आप लोगों का एक ओपिनियन बनता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, वो गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया है, वगैरह वगैरह। ओके, Audiovisual media like the radio, television, cinema, etc. अब जैसे कि सिनेमा की बात करें तो आप लोगों ने लाइव पूरी नहीं देखा होगा, तो उसका सिनेमा से हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन ओपिनियन रखे थे। तो उरी आया, ठीक है, फिर वो पैडमैन आया, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे जो मूवीज है हम लोग जो देखते हैं, वहां से हम लोगों का एक ओपिनियन बनता है कि ये भाई ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था उस जमाने में, वगैरह वगैरह। Are important in cultivating public opinion. Electronic media is more effective in the regions of lower literacy rates. It is seen that radio and television are considered far more important than newspapers and periodicals. Live telecast of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the medium of radio and television. A
public opinion can be created through the serials, dramas, and movies which can help portray socio-economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation, and poverty in an entertaining manner. तो आप सबको पता है कि एक बहुत सारी सीरियल्स मोटिवेशनल सीरियल्स होती है, ठीक है, करप्शन के खिलाफ या सोशलिस्ट के खिलाफ। सोशलिस्ट में मतलब जो बाल विवाह होते हैं या अनटचेबिलिटी होती है या फिर डाउरी सिस्टम होता है जिसमें दहेज लेने की बात या बच्चों छोटी बच्चियों को जन्म के साथ ही मार देने की बात, वो सब को एंटरटेनमेंट के फॉर्म में दिखाया जाता है और फिर वहां से वो जो दिमाग की कंडीशन है उनको सुधारा जा सकता है कि वी शुड नॉट डू दिस एंड वी शुड डेवलप दिस। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज फार बेटर देन प्रिंट मीडिया। In today's world, apart from television, the arrival and spread of internet has helped people to enjoy news, serials, dramas, and movies sitting comfortably in their homes. All these media can create an adverse effect through the presentation of distorted, obscene, and violent information. Hence, इसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है क्योंकि कुछ लोग रूमर्स फैलाने के लिए क्या क्या वीडियोस में एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और वो वीडियोस एडिटिंग वगैरह करने के बाद क्या हो जाता है, वो वीडियोस वगैरह एडिट करने के बाद फिर लोगों में एक अलग ही भावना आती है। सो वी शुड नॉट गो विद द रूमर्स, पहले सच जानने की कोशिश करो एंड देन ही उसके ऊपर आप लोग एक्शन ले सकते हो। it is essential to monitor and control transmission of harmful content through these important mediums. In a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs protest against various obscene and violent programs telecasted by the electronic media. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल और मतलब गवर्नमेंट या तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोटेस्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसा अगर अपने देश में नहीं होता हो तो वो देख के कुछ लोग करने की ट्राई भी करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई Today, in the fast-moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell and exchange thoughts as well as ideas. Electronic media is widely used to cultivate public opinion. Television, radio, personalized radio, that is FM, plays a special role in cultivating public opinion in modern times. In today's time, rumors spread instantaneously in the absence of facts and details. जैसे मैंने बताया, ठीक है, आप लोगों को फैक्ट्स के पीछे भागना है ना कि रूमर्स के पीछे, क्योंकि रूमर्स बहुत जल्दी से फैला जाती है। कुछ भी एक लोग व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फिर वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड और दिमाग में वही आता है कि नहीं ये इनने गलत किया। इंस्टेड ट्राई टू फैच द फैक्ट्स एंड देन गो फॉर द रूमर्स। Hence, there remains a danger of false public opinions being generated. Various types of surveys carried out by electronic media help create public opinion. Surveys are carried out to know public opinion with the help of some details. Opinion polls are presented during the elections. ठीक है, ये ओपिनियन पोल्स क्या होता है, सिर्फ इतना पता चलता है, वो रिजल्ट नहीं होता है, उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन सी पार्टी कितनी आगे है, ठीक है, वो पता हम लोगों को चल सकता है थ्रू ओपिनियन पोल्स, थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट। Opinion polls help to estimate the direction of public opinion. Opinion polls are not always true and reliable. Electronic media are very important in today's time. In a democracy, the people and the government should exercise patience. Electronic media helps to transmit people's thoughts, details, and talks to the government, and similarly helps transmit details. So, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम भी यही होता है कि गवर्नमेंट जो बोलती है वो हम लोगों को दिखाया जाए और हमारी जो डिमांड्स है वो गवर्नमेंट थ्रू दिखाई जा सकती है, सो दैट पब्लिक ओपिनियन गैदर करने में बहुत ही आसानी रहती है। About the various plans and achievements of the government to the people. Radio can reach in distant and remote areas.
But as it is only audio media, it has been less effective. और रेडियो भी जो है वो लेस इफेक्टिव है क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो है। हम लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों चीज चाहिए, इसीलिए न्यूज़पेपर से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स, सिनेमाज, सीरियल्स वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। Television programs, though expensive in nature, have gained more public viewership than radio. In a democracy, it is desirable that public opinion should be cultivated so as to cater to the needs of the welfare of the nation. Types of democracy. So now next topic is types of democracy. There are two types of democracy. One is parliamentary democracy and another is presidential democracy. Parliamentary democracy में क्या होता है, जैसे अपने इंडियन गवर्नमेंट में जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, फिर जिस पार्टी का मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स हो वो पार्टी रूलिंग पार्टी में आती है और उसका एक मेंबर पीएम बनता है। सेम थिंग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑल द पीपल हैव टू चूज बिटवीन टू पीपल। ओके, जैसे अभी अमेरिका की बात करें तो इट वाज ट्रम्प वर्सेस बाइडेन एंड जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिस पर्सन को मिलते हैं वो पर्सन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट और दैट कंट्री। Various countries in the world have democracy. There still exists diversity within various democracies of different countries. Our country has a parliamentary democratic system. In a country like USA, there is a presidential parliamentary system. We shall see in detail about the two types of democracies, that is parliamentary democracy and presidential democracy. Parliamentary democracy. Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as the prime minister. As you all know, ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे तब प्रणब मुखर्जी अपने प्रेसिडेंट थे और दूसरी बार जब बने तब वो थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर कब अपॉइंट होता है, जिसके पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिले हो उनको। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सीधा प्रेसिडेंट ही बन जाता है। ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट का राज चलता है, प्रेसिडेंट्स रूल होता है। The Prime Minister forms the government. The parliamentary government is completely accountable to the Lok Sabha. Government remains in power as long as it enjoys the confidence of the majority of the members of the parliament. Presidential democracy. Presidential democracy is the second important type of democracy. In such a type of democracy, the president is directly elected by the people. The president remains in power for a specific period as mentioned in the constitution. Presidential democracy is prevalent in many countries, including USA. Election system in democracy. इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एज यू ऑल नो कि अपनी कंट्री में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स है, तो ये इलेक्शन सिस्टम किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो एक इलेक्शन कमीशन बनता है, फिर वो लोग वेरियस पहले तो डेट्स निकालते हैं कि कौन सी डेट पे कौन सा लोकसभा का इलेक्शन होगा, फिर कौन सी जगह पे कौन से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पूरा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, a group of members which are present there in election commission. Okay, Country has maximum number of voters in the world. The election commission maintains the administration, control and monitoring of the entire process of election. It is essential for any democracy that its election commission is independent, impartial and autonomous. और ये हर एक कंट्री में होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन बनता है वो एकदम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, दूसरा वो किसी भी पार्टी के तरफ पार्शियल नहीं होना चाहिए एंड उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टी चीटिंग करती है तो उनको
निकाल दिया जा सकता है। फिर एक और रूल है अपने इंडियन गवर्नमेंट में कि 24 घंटे के पहले आप लोग प्रचार नहीं कर सकते। मतलब जिस दिन इलेक्शन हो उसके 24 आवर्स पहले यू कैन नॉट प्रचार योर पार्टी। ओके, It is mandatory to maintain the autonomy of the Election Commission. In the Constitution, there is a special provision for the terms and conditions of appointing the Election Commissioner, their criteria for service, or their removal or suspension from their service. The responsibility and authority to hold elections for the Parliament, State Assembly, Legislative Council, President and the Vice President rests with the Election Commission. So ये सब कुछ अथॉरिटी किसके पास होती है? विद द इलेक्शन कमीशन, कि किसका चुनाव कब करना है, कौन सी डेट पे होगा, कौन से एरिया में होगा या कौन से स्टेट में होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, The election of our country is carried out by secret ballot. Legislative Assembly or the Parliament is dissolved after every 5 years and then fresh elections are held. As you all know, terms of our government 5 साल का ही होता है, 5 साल, ठीक है। और वो 5 साल में अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हो तो उनको वापस जीतने के लिए ये सारी चीज आप लोगों को जैसे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताई जानी पड़ती है। एंड देन फिर इलेक्शन कैरी आउट होता है। और 5 साल के बाद भी अगर वही चीज वही गवर्नमेंट आती है तो वही गवर्नमेंट वापस पावर में आ जाती है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। The election carried out to elect a new candidate to fill up a vacuous place due to death or resignation of the candidate is known as by-election. अगर बाई चांस कोई एक्सपायर हो जाता है तो एट दैट टाइम जो इलेक्शन वापस होता है उसको बाई इलेक्शन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी मर गए, ठीक है, और उनका बेटा आके बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका पार्टी का कुछ न कुछ बाई इलेक्शन करके उनको वापस ऐड किया जाता है। The dates of election, advertisement, filling and scrutinizing the nomination forms, the dates for withdrawing the nomination forms, the declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of election symbols, etc., falls under the work area of the Election Commission. जैसे मैंने बताया, ये डेट सिलेक्शन, एलिजिबल कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को कौन हैंडल करता है? इलेक्शन कमिश्नर। From the time of announcement of the election dates, a protocol is implemented by the Election Commission. The government is bound to abide by the protocol and not carry out any activity or campaign that can affect the public opinion. जैसे मैंने बताया, बिफोर 24 आवर्स, ठीक है, एक प्रोटोकॉल जैसा बन जाता है कि आप लोग ये प्रचार नहीं कर सकते हो, इतने टाइम तक ही कर सकते हो, ये डेट पे ये नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह, रैलीज नहीं निकाल सकते हो। वो प्रोटोकॉल फॉर्मेशन किसका होता है? वो प्रोटोकॉल फॉर्मेशन होता है इलेक्शन कमीशन का। जो इलेक्शन कमीशन बोलती है वो हर एक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ओके, The candidates and the political parties come up with their own election manifesto. इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है क्या? अपने अपने, जैसे इस बार लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इस बार मोदी सरकार वगैरह वगैरह, तो ये क्या होता है, एक पब्लिक में एक छवि बनती है और फिर इलेक्शन का मतलब एक त्योहार जैसा माहौल बनाते हैं और वो त्योहार के जैसे ही इसका सेलिब्रेशन होता है। अलग अलग पार्टी अलग अलग अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, इतना हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, बिजली होगी घर घर में, हर एक को फ्री एजुकेशन मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अपने अपने प्रोपागेंडास लेके आते हैं। The election manifesto reflects the proposed plans and works of the party in terms of economic, defense, foreign policy, and various problems. Secret ballot in democracy.
Again, this is a very important topic, secret ballot in a democracy. Secret ballot क्या है? एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें आप लोगों को करना क्या रहता है, आप लोगों को वोटिंग के लिए बटन दिए जाते हैं। वो वोटिंग कौन सी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हो, सिर्फ वहां पे जाके आपको प्रेस कर देना होता है और वो एकदम सीक्रेट होना चाहिए। आप लोगों को किसी को बताना नहीं होता है कि आप ये पार्टी को स्पेसिफिकली सपोर्ट करते हो। ओके, तो दैट इज सीक्रेट बैलेट which is very helpful in democracy or gaining government. In our country, elections are conducted in a complete independent and secret manner. Indian parliamentary elections are considered to be the largest election process in the world. Various political parties, organizations, and independent candidates contest the elections. Each of them presents their works, ideas, and future plans to the voters. It is expected that the voters vote without any benefit, greed, or fear. और हमेशा गवर्नमेंट क्या क्या कर चुकी है, क्या कर रही है और क्या करने वाली है वो हमको बताती है और वो हमको बताने के बाद हम लोगों को भी फियरलेस रह के उनका क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए या तो उनके अगेंस्ट जाके दूसरों को वोट कर सकते हैं। दूसरी चीज आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी पार्टी में इंटरेस्ट ही नहीं है, बराबर है, तो आप लोग एक और ऑप्शन होता है दैट इज नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव पार्टी, ठीक है, तो वो उसमें भी आप लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। Secret ballot is given utmost importance in a democracy. A voter has a right to maintain the secrecy of his vote. No one can ask a voter regarding his vote. The amazing process of election maintains the secrecy of each voter's vote. The Election Commission facilitates the voting of all persons involved with the election process as well as the army personnel too. Two processes are used for voting. One, voting by a ballot paper. देखो, दो प्रोसेस होती है, वोटिंग बाय बैलेट पेपर एंड वोटिंग थ्रू ईवीएम। अब तो हर एक जगह पे ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, बटन दबाओ आपका वोट चला जाएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, बैलेट पेपर से आप लोगों को वहां पे या तो टिक करना पड़ता था या तो साइन करनी पड़ती थी और इस हिसाब से क्या होता था, आप लोगों का वोट कंसिडर किया जाता था। लेकिन उस पे क्या हो सकता है, उसका प्रॉब्लम एक ही है कि आप लोगों को गिनती बहुत करनी पड़ती है, दूसरा पेपर का बहुत सारा वेस्ट होता है। इसीलिए अब जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, सीधा डाला आपका वोट काउंट हो जाता है। ओके बच्चों। 2. Voting through an electronic voting machine or EVM. Counting ballot papers is more time consuming. Nowadays, most of the voting is carried out using EVMs. Counting votes in EVMs is less time consuming. It saves time and labor. Voting by using EVM is environment friendly as it does not make use of the paper. If a voter decides to exercise his right to vote but not to cast his vote in favor of any of the contesting candidates, he can use the opinion of nota, none of the above. Democracy and political parties. Now, there are number of political parties in our country, ठीक है, लेकिन उसमें भी नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी दो अलग अलग होते हैं। नेशनल पार्टी क्या होती है, जिसका ओवरऑल परसेंट 4% होता है, 4% से ज्यादा हर एक स्टेट में, तो वैसी पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाता है और जिसका कम होता है उसको रीजनल पार्टी बोला जाता है। नेशनल पार्टी में आते हैं बीजेपी, INC, ठीक है, वगैरह वगैरह। India is a multi-party democracy and hence we have various political parties. Specific criteria are fixed by the Election Commission to validate any political party. Political parties are classified either into national party
or regional party based on certain specific policies and criteria decided by the Election Commission. As per this, a party that secures more than 4% of the total votes in the previous general elections in at least 4 major states is identified as a national party, and the rest are identified as regional parties. As per the information given by the Election Commission by March 10, 2014, a total of 1,593 national parties were registered. ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि टोटल कितनी पार्टीज है, 1593 नेशनल पार्टीज वर रजिस्टर्ड। कब हुआ था? 10 मार्च 2014 को। Last year, 239 parties were added. In our country, Indian National Congress or INC and Bharatiya Janata Party BJP are the two major political parties. Along with this, बहुजन समाजवादी पार्टी ये सबका सिंबल है, ठीक है। बीएसपी कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे मैंने कल ही बताया था, केरला में वही चलता है। तो सीपीआई और सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। बीएसपी, Communist Party of India Marxist CPIM, and National Congress Party NCP are the other national parties. Apart from this, the Shiv Sena, Trinamool Congress, Samajwadi Party SP, Dravida Munnetra Kazhagam DMK, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AIADMK, Aam Aadmi Party AAP, Janata Dal United JDU, Rashtriya Janata Dal RJD, ये सब जो है, ये सब है रीजनल पार्टीज। अगर आप लोगों ने देखा हो तो शिव सेना जो है वो महाराष्ट्र के उसमें ही चलती है, ठीक है। देन तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कलाग्राम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कलाग्राम, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन में चलती है, इसीलिए उनको रीजनल पार्टीज में क्लासिफाई किया जाता है। Are regional parties. Based on the specified criteria, any national party can lose its status or any regional party can gain the status of the national party depending on the number of votes obtained by the party. So, आप लोगों को क्या करना है? ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्टी एक बार बन गई तो नेशनल पार्टी ही रहेगी। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगर 4% से कम ओवरऑल 4 मेजर स्टेट्स में आप लोगों को जनरल इलेक्शन में कम आते हैं तो वो नेशनल पार्टी का स्टेटस लूज होके वो रीजनल पार्टी बन जाता है। और सेम थिंग हैपेंस विद रीजनल पार्टी एज वेल। जो गवर्नमेंट पार्टी में होता है, रूल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और जो उसके अपोज में होती है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। The party forming the government is known as the ruling party. The party which forms the opposition is called the opposition party. The opposition party helps form public opinion by democratically opposing the objectionable plans and policies of the government. But in a healthy democracy, it is desirable that the opposition party supports the social and public causes of the ruling party, which are aimed at the welfare of the nation. So, अपोजिशन पार्टी का काम होता है किसी भी चीज को अपोज करना, ठीक है, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करना, अपने उसके हिसाब से डिबेट करना, ठीक है, और फिर वो अपोजिशन पार्टी अगर चाहे तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी हेल्प भी कर सकती है ऐसे मुद्दों में जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, पॉपुलेशन का कुछ मसला हो, पॉवर्टी हो गई, ठीक है, फ्लड आ गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, जैसे ये पैंडेमिक आ गया वगैरह वगैरह में क्या हो सकता है, वगैरह में ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है वो पार्टी एक साथ मिलके देश को आगे चला सकते हैं। The success of democracy depends on a balanced relationship between the ruling and opposing party. Effective and strong opposition party is a prerequisite of a good democracy. Democracy is like a chariot. As you all know, what is a chariot? अगर एक पहिए पे चलेगा तो वो हो सकेगा नहीं, ठीक है। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, लाइक अ 2 व्हील्स ऑफ चैरियट,
तो अपना देश जो है वो एकदम आसानी से अच्छे से चल सकता है. Ruling party and the opposing party are the two wheels of the chariot. So that's the end of your chapter number 12, bachcho. If you have gone through this, please do like, share, comment, and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Bye bye, students.